والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ آدمیت کو نئے طرز سے ڈھالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں۔ نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج حضرت خواجہ شمنا میرا رحمت اللہ علیہ کے آنگن میں تمام ہی عاشقین جمع ہیں اور سرکار شمنا میرا کے آستانے کی چوکھٹ کو چومتے ہوئے میں یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم میلاد کی سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ تمام لوگوں کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے یہاں بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی بیٹھے ہیں، آپ کا بھی تہہ دل سے بہت بہت استقبال ہے۔ میں اس دیش کے سنویدھان کو سلام کرتا ہوں کہ جس دیش کا سنویدھان مجھے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے پوری آزادی کے ساتھ میرے نبی کا میلاد منانے کی آزادی دیتا ہے، اور ہم اسی لیے جشن مناتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ ہم آج رسول اللہ کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں، اور آل رسول کی بارگاہ ہے، اور جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تعزیے سجائے جاتے ہیں۔ اس کو امام باڑہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ رب العالمین ہے، وہ سب کو رزق عطا فرماتا ہے، چاہے کوئی اس کو سجدہ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، وہ رب العالمین ہے، وہ اس کو بھی عطا فرماتا ہے جو اس کو مانتا ہے، جو اس کو بھی عطا فرماتا ہے جو اس کو نہ مانے، وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو عبادت نہیں کرتا، وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ نے جس نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اس نبی کی رحمت جس طرح سے مسلمانوں کے لیے ہے اسی طرح سے غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ یاد رکھنا کہ جس طرح سے رسول اللہ سب کے لیے رحمت ہے، جس طرح سے رسول اللہ کا نظام سب، وہ حسین بھی کسی ایک سماج کے نہیں، جس طرح سے اللہ رب العالمین ہے، جس طرح سے مصطفیٰ سب کے لیے رحمت ہے، اسی طرح سے حسین بھی سب کے لیے ہے۔ ہم کیوں مناتے ہیں عید میلاد النبی؟ جشن میلاد سے ہم شکر خدا کرتے ہیں، ہم وفادار ہیں، احسان فراموش نہیں۔ رسول اللہ کے میلاد کا جشن کیوں منانا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن کیوں منانا چاہیے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ آج دنیا میں سارے سیلیبریشنز ہو رہے ہیں۔ آج ہیومن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے، آج وومنس ڈے منایا جا رہا ہے، آج لیبرز ڈے منایا جا رہا ہے، آج دیش کی آزادی کا جشن منایا جاتا
آج संविधान दिवस मनाया जाता है, आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है। सारी दुनिया सेलिब्रेशन के दौर में जी रही है। यहाँ बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहे हैं, यहाँ मैरिज एनिवर्सरी भी हो रही है। सारी दुनिया में अब सेलिब्रेशन का रिवाज है। किसी दिन को माओं के नाम से मंसूब कर दिया गया है, किसी दिन को महिलाओं के सम्मान के नाम से मंसूब कर दिया गया है, किसी दिन को इंसानियत के हुकूक के नाम पर मंसूब कर दिया गया है। लोगों, ये जितने भी नारे हैं, इन नारों की अगर जिंदगी तुम देखोगे तो इन नारों की जिंदगी 200 साल से ज्यादा की नहीं है। 200 साल के बाद में ये ह्यूमन राइट्स डे शुरू हुआ, मदर्स डे शुरू हुआ, फादर्स डे सेलिब्रेट करना शुरू हुआ। इन नारों की जिंदगी अगर आप देखोगे तो चाहे जितना पीछे चले जाओ, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स आपको मिलेगा, उसकी जिंदगी 250 साल है। थोड़ा सा और पीछे चले जाओ, मैग्ना कार्टा आपको मिलेगा, जिसमें दुनिया के सारे हुकूक तय किए गए हैं। 250-300 साल से ज्यादा दुनिया के इन तमाम संविधानों की तारीख नहीं है। लेकिन आज जिस नबी के मीलाद का जश्न मनाने के लिए यहां से लेकर वहां तक ये सारे लोग जमा हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। तुम उस नबी के मीलाद का जश्न मना रहे हो कि जिस पर कुरान जैसा सिद्धांत और कुरान जैसा संविधान 200 साल पहले नहीं, 300 साल पहले नहीं, 400 साल पहले नहीं, 500 साल पहले नहीं, जब दुनिया डार्क एज में थी, जब दुनिया अंधेरे के जमाने में थी, जब दुनिया जुल्म ज्यादती कर रही थी, जब दुनिया में आतंकवाद था, जब दुनिया में रेडिकलिज्म था, जब दुनिया में एक्सट्रीमिज्म था, जब दुनिया में महिलाओं पर अत्याचार था, जब दुनिया में काले लोगों को उनके रंग की बुनियाद पर जलील किया जा रहा था, जब दुनिया में गरीबों को पिछड़ा बनाया जा रहा था, जब दुनिया में अति पिछड़े समाज को इंसान नहीं माना जाता था, ऐसे दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और ऐसी नाइंसाफी के जमाने में रसूल अल्लाह ने दुनिया को कुरान जैसा संविधान अता फरमाया है। इसलिए याद रखो दोस्तों कि अगर आज ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है तो ह्यूमन राइट्स का तसव्वुर देने वाली जात का नाम मोहम्मद रसूल अल्लाह है। अगर आज दुनिया में राइट टू रिलीजन की बात हो रही है तो इस तसव्वुर को देने वाली जात का नाम मोहम्मद रसूल अल्लाह है। और कुरान मजीद में कहा गया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि नॉन बिलीवर्स जो ईमान नहीं रखते अल्लाह पर, सुनो, जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं करते, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। अब जब मजहब अलग अलग हो गए और ये बात क्लियर हो गई कि हमारे धर्म अलग हैं, अब इसके बावजूद भी जिंदा रहने का फलसफा क्या होगा, जीवित रहने का फलसफा क्या होगा, तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि धर्म भले ही अलग अलग हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। अगर इंसानियत को जिंदा रखना है तो आज 2024 में रसूल अल्लाह का ये लकुम दीनुकुम वलिय दीन इस मुल्क में नाफिज करना होगा ताकि अमन और अमान के साथ सारे देश के लोग रह सके। सलाम का पैगाम है। हमारे संविधान में इसी को राइट टू रिलीजन कहा गया और आज दुनिया के सारे संविधानों में इसको एंजॉय किया जा रहा है। आज दुनिया में ये बात कही जा रही है, हमारे देश के हवाले से ये कहा जाता है कि ये सेकुलर देश है, हमारे देश के हवाले से ये कहा जाता है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। अरे मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो कि ये सारी बातें, हमारे देश का संविधान 1949 में बना, 1950 में 26 जनवरी को ये लागू हुआ, लेकिन जरा सोचो कि हमारे संविधान की जिंदगी 100 साल से ज्यादा की नहीं है, लेकिन रसूल अल्लाह ने ये तसव्वुर एक साथ में रह करके डिसएग्रीमेंट्स के साथ में एग्रीमेंट करने का, इख्तिलाफ के बावजूद जिंदगी गुजारने का, इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद के साथ में रहने का, मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ में खुशी और गम सेलिब्रेट करने का तसव्वुर दुनिया को 1400 साल पहले अता फरमा दिया था। इसीलिए रसूल अल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, क्योंकि वो जिस तरह से मस्जिद के लिए रहमत हैं उसी तरह से पार्लियामेंट के लिए भी रहमत हैं। रसूल अल्लाह जिस तरह से मदरसों के लिए रहमत हैं उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी रहमत हैं। रसूल अल्लाह जिस तरह से मजहबी निज़ाम के लिए रहमत हैं उसी तरह से रसूल अल्लाह सोशल सिस्टम के लिए भी रहमत हैं। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुमको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। तुम्हारे रहमत के दरिया से अगर मुसलमान पानी पिएगा तो उसके दिल को भी सुकून मिलेगा, अगर कोई गैर मुस्लिम पानी पीता है तो उसके दिल को भी राहत मिलेगी। इसीलिए इस मुल्क में
न जाने कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं। मैं अगर मोहनदास करमचंद गांधी की बात करूं तो गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में जब भी मैं इतिहास पढ़ता हूं हुक्मरानों का, हरिजन अखबार में गांधी जी का ये बयान छपा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जब भी मैं इतिहास पढ़ता हूं दुनिया में हुक्मरानों का, तो तमाम हुक्मरानों का एक प्रोटोकॉल दिखाई देता है। तमाम हुक्मरान अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मैंने इतिहास में ये देखा है कि ये रसूलुल्लाह के अबू बकर और ये रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता उमर है जिन्होंने इतनी सादगी के साथ में दुनिया में अपना सिस्टम चलाया और इतनी सियासत की है कि दुनिया में उनके अलावा कोई और नज़ीर नहीं दिखाई देती। यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अबू बकर और उमर हैं। और तारीख पढ़ो तो आपको मिलेगा कि एम.एन. रॉय जो एक गैर मुस्लिम स्कॉलर थे, कम्युनिज्म का इनकलाब आया 1920 में, बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय कहते हैं, एम.एन. रॉय ने कहा जब उनकी बड़ी इंटरनेशनल तंजीम ने, कम्युनिस्टों की बड़ी इंटरनेशनल तंजीम बनी, उस तंजीम में एम.एन. रॉय को भी शामिल किया। और एम.एन. रॉय ने जब अपना खुतबा दिया था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एम.एन. रॉय कहते हैं कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि दुनिया के तमाम हुक्मरानों ने, मैंने बड़े बड़े हुक्मरानों की तारीफ पढ़ी, दुनिया में बड़े बड़े राजा हुए हैं, दुनिया में बड़े बड़े रूलर्स हुए हैं, तमाम हुक्मरानों का मैंने इतिहास पढ़ा है, लेकिन तमाम हुक्मरानों के इतिहास में और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीख में फ़र्क यह है कि तमाम राजाओं ने ज़मीनों पर हुकूमत की है, लोगों के सरों पर हुकूमत की है, तलवार के बलबूते पर हुकूमत की है। लेकिन एम.एन. रॉय कहते हैं कि यह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिन्होंने सिर्फ सर पर हुकूमत नहीं की है बल्कि लोगों के दिलों पर हुकूमत की है। और मैं आपको बताऊं लोगों के दिलों पर हुकूमत क्यों की है, क्यों की है दिलों पर हुकूमत। मुसलमान नहीं कहता, एक नॉन मुस्लिम स्कॉलर कहता है, मेरे यहाँ तमाम भाई मौजूद हैं, यहाँ टोपियाँ भी हैं, टीके भी हैं, मैं इनसे भी प्यार करता हूँ, आपसे भी प्यार करता हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमारा कुरान कहता है कि हम और आप हज़रत आदम की औलाद हैं, यानी सब एक ही बाप की औलाद हैं। हमारे बुजुर्गों ने यह सिखाया कि तुम अपने मजहब के लोगों से इस्लाम की बुनियाद पर प्यार करो, और जो तुम्हारे धर्म के नहीं हैं, जो टीके वाले हैं, तुम उससे इसलिए प्यार करो कि वो जनाबे आदम की औलाद है, इसलिए हम इनसे भी प्यार करते हैं ताकि यह बेवफाई ना करें, और तुम्हें इसलिए शिद्दत से चाहते हैं क्योंकि तुम हमारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और तुम हमारे इंसानी भाई हो। हम तुम्हें अपने सीने से लगाने का दम रखते हैं। हम तुम्हें जब कोई इज्जत नहीं देता इस समाज में, जिनको कोई इज्जत नहीं देता था उस समाज में, रसूलुल्लाह ने उस बिलाल को खाने काबा की छत पर चढ़ा करके दुनिया को यह मैसेज दिया था कि अब भेदभाव का जनाजा निकल जाता है, अब डिस्क्रिमिनेशन का जनाजा निकाला जाता है, अब छूत अछूत का जनाजा निकाला जाता है, अब अनटचेबिलिटी का निजाम का खात्मा किया जाता है। इसलिए किसी को भी जात की बुनियाद पे, समाज की बुनियाद पे, जबान की बुनियाद पे, पेशे की बुनियाद पे जलील नहीं समझा जाएगा, बल्कि जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है वही बंदा सबसे ज्यादा इज्जत करने के लायक है। क्यों लोग उनको माने, क्यों उनका सेलिब्रेशन किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं। एम.एन. रॉय ने जो कहा कि दिलों पर हुकूमत की, और सिर्फ एम.एन. रॉय ने नहीं बल्कि माइकल हार्ट ने किताब लिखी, माइकल हार्ट ने किताब लिखी और दुनिया की 100 बड़ी शख्सियात का उसमें जिक्र किया, और 100 बड़ी शख्सियात में सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उसने जिक्र किया। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र उसने किया और उससे पूछा गया कि तुमने सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र इस किताब में क्यों किया। तो माइकल हार्ट कहता है कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े लोगों का इतिहास पढ़ा है, कोई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, कोई बहुत अच्छा समाज सेवी है, कोई बहुत अच्छा शोहर है, कोई बहुत अच्छा सोशल एक्टिविस्ट है, कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट है, किसी का जमाल बहुत अच्छा है, किसी का भाषण बहुत अच्छा है, लेकिन ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, जब इनको कोई देख लेता है तब भी इन पर अपनी जान कुर्बान कर देता है, अगर ये बोल दे तब भी इनके अल्फाज से
मौके पर लोग अपनी जान निछावर कर देते हैं। ये एक बेमिसाल पॉलिटिशियन भी हैं, ये एक बेमिसाल समाज सेवी भी हैं, ये एक बेमिसाल शौहर भी हैं, ये एक बेमिसाल बेटे भी हैं, ये एक बेमिसाल नागरिक भी हैं। इसलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र मैंने अपनी इस किताब में सबसे पहले इसलिए किया है कि दुनिया की तमाम शख्सियात के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जिस पहलू से भी देखो हर पहलू नुमाया नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं आपको बताऊं कि ये नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स जिन्होंने रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ लिया, आखिर वो रसूलुल्लाह से क्यों प्यार करते हैं, क्यों मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद ने लोगों के दिलों पर क्यों हुकूमत की है, ज़रा दिल पे हाथ रख के सुनो। एक सहाबी हुजूर के बारगाह में आए और उन्होंने आकर के अर्ज़ किया, परेशान थे, रोते हुए आए, उन्होंने आकर के अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मेरा बेटा गुम हो गया है, मेरा बेटा खो गया है। रसूलुल्लाह की बारगाह में जब आए तो सहाबा और भी बैठे हुए थे, तो सहाबी एक खड़े हुए, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह मैंने इनके बेटे को फलां जगह बैठा हुआ देखा है, खेलते हुए देखा है, फलां जगह कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मैंने वहां देखा है कि इनका बच्चा भी वहां खेल रहा है। तो वो सहाबी जिनका बेटा था वो दौड़े अपने बच्चे की तरफ। रसूलुल्लाह ने उनको बुलाया, कहा बेटे की जल्दी है। रसूलुल्लाह ने उनको बुलाया और कहने लगे कि या रसूलुल्लाह मैं परेशान हो गया हूँ तलाश करते करते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जा तो रहे हो, वहाँ कुछ और भी बच्चे खेल रहे होंगे, इसलिए जब तुम जाओ और उन बच्चों को देखो तो अपने बच्चे को बेटा कह करके ना पुकारना, बेटा कह करके ना पुकारना। पूछते हैं या रसूलल्लाह क्यों? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हो सकता है वहाँ पर कोई बच्चा ऐसा भी हो कि जिसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया हो, और तुम जब ये कहो बेटा कह कर के आवाज़ दो तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए कि काश मेरा बाप भी दुनिया में जिंदा होता और मुझे भी बेटा कह करके पुकारता। लोगों, रसूलुल्लाह की सीरत को और रसूलुल्लाह की ज़ात को मीडिया के नैरेटिव से तहमत करो। इस देश के 125 से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को, देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया का अपना प्रोपेगेंडा है, सियासत का अपना प्रोपेगेंडा है इस देश में आग लगाने का, लेकिन हम अमन पसंद लोग हैं, हम पैगंबरे अमन और शांति का जश्न मना रहे हैं। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये तमाम जो नफरती एजेंडा, तमाम नफरती प्रोपेगेंडा जो लोगों के दिमागों में इंजेक्ट किया जा रहा है, आप वहाँ से तय न करें कि रसूलुल्लाह की ज़ात क्या है, आप वहाँ से तय न करें कि प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे। मैं आपको बताता हूँ, उस जमाने का जो गोदी मीडिया था, जिसको अबू जहल, अबू लहब, अतबा और शैबा कहा जाता है, ये यहूदियों का गोदी मीडिया थे। इस गोदी मीडिया ने क्या किया कि डोर टू डोर जाकर के अभियान चलाया कि कोई मोहम्मद से ना मिले, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर कोई मोहम्मद से मिल लेता है तो वो उन पर अपनी जान निछावर करता है, तो अगर कोई मोहम्मद से मिल लेता है तो अपना दिल उन पर कुर्बान कर देता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जमीनों को जीतने वाले नहीं, दिलों को फतह करने वाले हैं। अबू जहल भी ये जानता था, अबू लहब भी ये जानता था, इसलिए अभियान चलाया कि मक्का में कोई भी आने वाला मोहम्मद से ना मिले, अगर मिल लेगा तो उनके मजहब पे चला जाएगा। इसलिए एक नैरेटिव, एक नेक्सस तैयार किया अबू जहल, अबू लहब, अतबा और शैबा ने, माहौल बना रहे कोई ना मिले। अब क्या हुआ कि इसी माहौल से मुतासिर होकर के एक बूढ़ी खातून मक्का छोड़ करके जाने लगी, देश से निकलने लगी और देश की सरहद पे जाके खड़ी हो गई कि भैया अब हम अब अपना देश बदल लेंगे। और जब वो देश के बाहर थी तो रसूलुल्लाह अपने सहाबा के साथ वहाँ से तशरीफ़ ला रहे थे। देखा कि एक बूढ़ी खातून है जिसके हाथ में कुछ सामान है और अकेली है, परेशान है, और सूरज है, रेतीली ज़मीन है। रसूलुल्लाह का मामूल था कि जब वो किसी परेशान हाल को देखते थे तो उसको इग्नोर नहीं करते थे, नज़रअंदाज नहीं करते थे। रसूलुल्लाह ने उस बूढ़ी खातून से पूछा कि माँ क्या मामला है? तो वह बूढ़ी खातून कहने लगी कि बेटे मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद नामी एक नौजवान है, अगर कोई उससे बातें कर लेता है, अगर कोई उससे मिल लेता है तो वह अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ देता है, अगर कोई उससे मिल लेता है तो वो उस पर कुर्बान हो जाता है। तो मैं इस डर से मक्का छोड़ कर के जा रही हूं कि कहीं उसके जादू का असर मुझ पे ना हो जाए। तो इस नेक्सस का असर जब एक महिला पर हुआ, एक बूढ़ी पर हुआ, और जब वो मक्का छोड़ करके जाने लगी तो मोहम्मद मिल गए, और रास्ते में जब मिल गए तो मुलाकात की, बातचीत की, और जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो मक्का छोड़ करके जा रही है तो हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया। कहने लगे कि अगर अम्मा इजाज़त दे दो तो मैं तुम्हारा बोझ उठा लूँ, तुम्हारा सामान उठा लूँ। वो बूढ़ी खातून
कहती है कि हाँ ठीक है, मेरा सामान उठा लो। मोहम्मद ने एक बूढ़ी खातून का बोझ उठाया। मैसेज ये है यहाँ पर कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोझ लगाने के लिए नहीं बल्कि समाज से बोझ हटाने के लिए आए हैं। चाहे नफरत का बोझ हो, गुनाहों का बोझ हो, ज़ाहिरी बोझ हो, बातिनी बोझ हो, रसूलुल्लाह हर बोझ को ख़त्म करने के लिए आए हैं। अब वो बोझ जब उठाया तो मोहम्मद आगे आगे चले, वो बूढ़ी पीछे पीछे चली। औरत तो वैसे भी खामोश नहीं रहती, और फिर अगर बूढ़ी हो तो फिर भी खामोश होना मुश्किल हो जाए, तो वो बूढ़ी खातून पीछे पीछे चली, मोहम्मद आगे आगे हैं। अपनी मंजिल पर पहुंची वो बूढ़ी खातून तो कहने लगी कि बेटा यहीं पर मुझे जाना था, अब सामान मेरा रख दो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अभी अपना नाम नहीं बताया था। समाज सेवा बगैर सोशल मीडिया के भी की जा सकती है, समाज सेवा बगैर नामो नमूद के भी की जा सकती है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नाम नहीं बताया। जब वापस होने लगे तो वो बूढ़ी खातून कहती है कि बेटे ज़रा अपना नाम तो बताते जाओ, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि कहाँ से आई हो तो मैं वहाँ बता तो पाऊंगी कि जहाँ मोहम्मद उस शहर में ऐसे हैं तो कोई एक नौजवान ऐसा भी है कि जिसने मेरा बोझ उठाया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जब उस बूढ़ी खातून ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो मोहम्मद ने मुस्कुरा करके बताया कि माँ मेरा ही तो नाम मोहम्मद है। वो बूढ़ी कहती है कि बेटा अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद है तो दुनिया झूठी हो सकती है मगर तुम झूठे नहीं हो सकते। तो वो बूढ़ी खातून कहती है कि दुनिया झूठी हो सकती है, दुनिया झूठी हो सकती है, तुम झूठे नहीं हो सकते। इसलिए देश के 25 करोड़ मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया अगर तुम्हारे खिलाफ नफरत का प्रोपेगेंडा परोस रही है और रोज़ाना 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर तुम्हारे खिलाफ जहर उगला जा रहा है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भड़काने की कोशिश है। और याद रखना कि अगर किसी के भड़काने पर तुम भड़क गए तो जंग हार जाओगे। इसलिए अगर एक तरफ नफरत की आग लगाई जा रही है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों को यहाँ से लेकर दिल्ली तक, आसाम से लेकर बंगाल तक, कश्मीर की कन्याकुमारी से लेकर के बंगाल की खाड़ियों तक ये तय करना है कि अगर एक तरफ इस देश में नफरत की आग लगाने वाले आग लगा रहे हैं तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले उस आग पर पानी डालने का काम करेंगे और इस देश को बचाने का काम करेंगे। और ये मत समझना कि तुम्हारे अकेले के काम करने से क्या होगा। वो कहीं आग लगी थी, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो सारे लोग अपना अपना काम कर रहे थे। नमरूद अपना काम कर रहा, सारे जालिम मिलके अपना काम कर रहे थे। एक छोटी सी मुन्नी सी चिड़िया उस आग में पानी डालने का काम कर रही थी। एक कौवे ने जब उसे देखा तो चिड़िया से कहा कि चिड़िया तेरी चोंच के पानी से इस आग को बुझाया तो नहीं जा सकता, तेरी चोंच के पानी से यह आग नहीं बुझेगी। तो इस चिड़िया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं सबके लिए बहुत हौसले वाली बात है। चिड़िया ने कहा था मैं मानती हूँ कि मेरी चोंच के पानी से इस आग को नहीं बुझाया जा सकता, लेकिन जब कल इस आग का इतिहास लगा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए याद रखना लोगों, ख्वाजा शमना मीरा की चौखट पर तुम बैठे हो, तुम्हें कसम देता हूँ कि अगर तुम्हें कोई भड़काने की कोशिश करता है, अगर तुम्हें कोई प्रोवोक करने की कोशिश करता है तो याद रखना हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने दंगों को खत्म किया है। हम उस नबी को मानने वाले हैं जिन्होंने नफरतों को खत्म किया है। अगर एक तरफ इस देश को आग लगाने की साजिश हो रही है तो इस देश में अशफाकुल्लाह खां वारसी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की औलादों को यह तय करना है कि हमें इस देश को आग लगने से बचाना है और इस देश को सूफी संतों का हिंदुस्तान बनाए रखना है। और मैं आपको बताऊं जिस नबी की हम आमद का जश्न मना रहे हैं, साहब जरा गौर से सुनिएगा। मक्का में दंगा होने वाला था, एक मरतबा सैलाब आ गया, पानी बड़ा तेज था। खाना काबा जिसकी तरफ रुख करके सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो वो काबे की दीवार पानी के बहाव की वजह से गिर गई। अब पूरे मक्का के लोगों ने काबे को दोबारा तामीर किया। उसी काबे में एक पत्थर है जिसको हजरे अस्वद कहा जाता है। तो उस हजरे अस्वद को काबे की दीवार पर नस्ब करने की जब बात आई
تو سارے جو ٹرائبس تھے وہ کہنے لگے جی یہ پتھر ہم رکھیں گے، یہ پتھر ہم رکھیں گے۔ لوگوں نے تلواریں نکال لی اور سب اپنے اپنے خاندان اور قبیلے کی سنکھیا بتانے لگے، ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں، ہمارے خاندان اتنے اور ہماری تلواریں اتنی۔ یعنی سماج میں دنگا ہونے والا تھا، مکہ شہر میں آگ لگنے والی تھی، لوگ ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے۔ اور جب یہ حالات پیدا ہوئے تو ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، صبح میں، کل صبح میں جو بھی شخص پہلے حرم میں داخل ہو جائے گا اسی شخص کو یہ سمان پراپت ہوگا کہ وہ کعبے کی دیوار میں پتھر کو لگا دے۔ تو اس پر پرستاؤ پاس ہو گیا، یہ ایک ٹریٹی تھی، یہ ایک معاہدہ تھا۔ اب کیا ہوا کہ جب صبح آئی تو صبح نمودار ہونے سے پہلے پہلے محمد الرسول اللہ حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ اور جب سارے مکہ کے لوگوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ان پر مطمئن ہیں، ہم ان پر سیٹسفائی ہیں، محمد تو امانت دار ہیں، محمد تو سچ بولنے والے ہیں، انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، اس لیے اگر یہ پتھر رکھیں گے تب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ اب آگے کی بات سنیے کہ جب رسول اللہ پر سب مطمئن ہو گئے اور سب نے معاہدہ کر لیا، اس کے بعد میں محمد نے کہا بھائی سارے ٹرائبس کے لوگ، سارے قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے لیڈر کو چن لو۔ سب نے اپنا اپنا لیڈر چنا اور لیڈر چننے کے بعد میں آگے کر دیا، رسول اللہ نے ایک کپڑا منگایا، کپڑا منگا کر کے پتھر کو اس کپڑے کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ جتنے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں یہ آگے آئیں اور اس کپڑے کا ایک ایک کونا پکڑ لیں، اس کپڑے کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ سب نے ایک ایک کونا پکڑا اور پھر جب وہ پتھر اٹھایا، پتھر اٹھانے کے بعد میں رسول اللہ نے پھر خانہ کعبہ میں اس کو نصب کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اس طرح سے رسول اللہ نے اسٹریٹجی اپنائی کہ سب کا مان سمان بھی رہ جائے، کعبے کی دیوار میں پتھر بھی نصب ہو جائے اور میرے دیش میں آگ لگنے سے بھی بچ جائے، میرا دیش نفرت سے بھی بچ جائے، میرا دیش قتل و غارت گری سے بھی بچ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا کہ اگر کسی ایک انسان کا بلا وجہ خون بہتا ہے تو وہ ساری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ آج پیغمبر امن و شانتی کے جنم دن پر اور اس یوم میلاد پر ہم اس بات پر اعلان کرتے ہیں کہ اس دیش کے 25 کروڑ مسلمان اس دیش میں آگ لگانے والے نہیں بلکہ آگ بجھانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کیوں اس نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں؟ میں کن کن پہلوؤں پر بات کروں محمد الرسول اللہ کے؟ آج دنیا میں مہیلاؤں کے سمان کی بات ہو رہی ہے، بڑی دل کو لگنے والی بات۔ اور بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، تم رسول اللہ پر درود پڑھا کرو، ہمیشہ درود پڑھو۔ جب میری بات یہ یاد آئے نا تو حضور پر درود پڑھنا۔ سر آج مہیلاؤں کے سمان کی بات ہو رہی ہے، پتی پتنی کے ادھیکاروں کی بات ہو رہی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، رسول اللہ کی پتنی حضرت عائشہ صدیقہ، ان کا ہار گم ہو گیا، وہ جو گلے کا ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ اب جب گم ہو گیا تو رسول اللہ سے انہوں نے کہا کہ جی میرا ہار گم ہو گیا۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، یعنی محمد کا کیریکٹر اپنے گھر میں ایسا ہے کہ پتنی کو اس بات کا پورا وشواس ہے کہ اگر میں اپنے پتی سے کوئی بات کہہ دوں تو مجھے وہ ذلیل نہیں کریں گے، مجھے ڈانٹیں گے نہیں، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بڑی لاپرواہ ہو، ذرا سا بھی تمہیں خیال نہیں ہے، اتنا مہنگا تم نے جو ہے وہ ہار گما دیا، یہی تو ہوتا ہے۔ لیکن محمد نے کہا اچھا ہار گم ہو گیا، پورے قافلے کو روک دیا رسول اللہ نے، پورے قافلے کو روک دیا رسول اللہ نے۔ کس لیے؟ کہا میری پتنی کا ہار جو گم گیا ہے اس کو ڈھونڈا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کو سنت بنا دیا رسول اللہ نے۔ اب اگر دنیا میں کوئی پتی اپنی پتنی کو عزت دیتا ہے، سمان دیتا ہے، تو جس طرح سے داڑھیاں رکھنا سنت اور مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح سے اپنی خاتون کو عزت دینا اور اس کے لیے سیکریفائز کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ سارے لوگ ہار ڈھونڈنے لگے۔ ہار جب ڈھونڈنے لگے، نماز کا وقت آ گیا صاحب، نماز کا وقت آ گیا، پانی وہاں پہ تھا نہیں وضو کرنے کے لیے۔ اب صحابہ کرام اس دور کے مسلمانوں کی طرح تو تھے نہیں، جلوس میں تو بھیڑ ہے، مسجد میں نہیں ہے، وہ اس دور کے مسلمان تھے۔ نماز کا انہیں ایسا احساس ہونے لگا کہ کہیں نماز نہ چھوٹ جائے، پانی وہاں پہ تھا نہیں، اور دوسرا کوئی پراودھان نہیں تھا، دوسرا کوئی پراودھان نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے بغیر وضو کے۔
تو پھر یہ ہوا کہ جب ہاتھ ڈھونڈنے لگے تو ٹائم ہو گیا نماز کو، نماز نکلنے والی تھی، اور لوگ رسول اللہ کی پتنی کو بلیم کرنے لگے، کہا ان کی وجہ سے، ان کے ہار کے کھو جانے کی وجہ سے ہماری نماز نکلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو حضرت عائشہ کے ہار گمنے کے حوالے سے یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پانی وہاں پہ موجود نہیں ہے، نماز بھی نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، رسول اللہ نے اپنی پتنی کا ہار ڈھونڈنے پر تمام قافلے والوں کو، تمام آرمی کو لگا دیا ہے۔ اب جب لوگ یہ سوچنے لگے کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس بھلے ہی پانی نہیں ہے لیکن میرے نبی کی بیوی کے لیے تم سنگھرش کر رہے ہو، تم ان کا ہاتھ ڈھونڈ رہے ہو، تو یاد رکھنا تمہیں مایوس نہیں کیا جائے گا۔ اسلام نے مہیلا کو یہ عزت دی کہ اگر کوئی اس کو بلیم کرنے کی کوشش کرے تو اس پر اللہ کی آیت نازل ہو جاتی ہے کہ یاد رکھنا نبی کی پتنی کو کوئی بلیم نہ کرے، اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو تم مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہو۔ یہ دنیا کو جو سمان ملا نا پانی نہ ہونے پر، ہم اپنے دیش کی مٹی سے تیمم کر کے منہ پہ لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو سمان ملا ہے یہ ایک عورت کی وجہ سے، خاتون کی وجہ سے، تو کیا اس نبی پر درود نہیں پڑھنا چاہیے؟ جب بھی یہ بات یاد آئے نا تو حضور پر درود ضرور پڑھنا، اور اپنے بچوں کو تیار کرو کہ جس طرح سے رسول اللہ نے اپنی خاتون کو عزت دی ہے ویسے ہی تمہارے بیٹے آنے والی بیوی کی عزت کرے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، مہیلاؤں کے سمان کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، مہیلاؤں کے سمان کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ صاحب لیڈی فرسٹ کی بات ہو رہی ہے تو فرسٹ لیڈی سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت حوا فرسٹ لیڈی ہے اکارڈنگ ٹو اسلام۔ تو وہ کیا ہوا کہ اللہ نے منع کیا تھا جنت میں جب حضرت آدم تھے کہ بھائی اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کے پاس مت جانا، تو وہ شیطان نے ان کو بہکایا، قرآن میں ذکر ہے شیطان نے ان کو بہکایا، تو حضرت حوا نے کہا، مہیلا نے کہا کہ چلو اس درخت کا پھل چکھ لینے میں کیا نقصان ہے، درخت کا پھل چکھ لینے میں کیا نقصان ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت آدم بھی اس پیڑ کی طرف بڑھ گئے۔ اب جب اس پیڑ کی طرف بڑھ گئے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ ان سے بھول ہو گئی، ان سے جب بھول ہو گئی تو مہیلا کے کہنے کی وجہ سے وہ اس پیڑ کی طرف بڑھ گئے جہاں نہیں بڑھنا تھا۔ اب قرآن نے اس کو جو کہا، ہم اگر اپنے گھر میں ماحول دیکھیں تو اگر بیٹا کوئی نالائق ہو جاتا ہے تو باپ کہتا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرے پہ گیا ہے، یہ ساری حرکتیں تیری ہیں اس کے اندر، اور اگر بیٹا کامیاب ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا بیٹا ہے نا۔ اس وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے نا ہر گھر میں کہ اگر کامیابی ہو تو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، مرد اپنی طرف اس کو منسوب کرتا ہے، ناکامی ہو تو عورت کی طرف منسوب کرتا ہے۔ پتہ ہے قرآن میں ایک عورت کی، ایک مہیلا کی عزت کی سرکشا کیسے کی گئی ہے؟ قرآن میں کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ مہیلا نے کہا ضرور تھا کہ پیڑ کی طرف بڑھو، لیکن اللہ نے حضرت حوا کا نام نہیں لیا بلکہ کہا کہ جناب آدم کو اور حضرت حوا دونوں کو شیطان نے بہکا دیا، اس لیے اس طرف چلے گئے تھے۔ کیا بات ہے، اسلام نے تم کو وہ عزت دی ہے، اب چھوڑ کے جاؤ گی اسلام؟ کیا دوسرے مذہب کو قبول کرو گی تم؟ دین نے جو تمہاری عزت دی ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اب میں آپ کو آخری بات بتا دوں کہ یہ نظام ہے اسلام کا، یہ پرمپرا ہے اسلام کی جو ایک دوسرے کے ساتھ میں جینا سکھاتی ہے اور ایک دوسرے کے دل کا خیال رکھنا سکھاتی ہے، جذبات کا خیال رکھنا سکھاتی ہے۔ یہ اسلام وہاں سے چلا یہ اسلام، اور کربلا پہنچا جب اسی سسٹم کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی گئی اور جب اسی سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، رسول اللہ کے اس یونٹی، رسول اللہ کے اس ہیومینٹی، رسول اللہ کے اس نظام کے خلاف جب یزید جیسی ایک طاقت کھڑی ہوئی تو رسول اللہ کے نواسے حسین نے دنیا کا سب سے بڑا آندولن کربلا کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ میرے نانا نے انسانیت کے جس مذہب کا دنیا میں تعارف کرایا ہے، حسین اس سسٹم کو بچانے کے لیے جان تو دے سکتا ہے مگر نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اسی لیے گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر حسین جیسے 72 ساتھی بھی میرے ساتھ ہوتے تو میں اس دیش کو 24 گھنٹے میں آزاد کرا دیتا۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ میں 20 سال جیل میں رہا
घुटने टेक दूं। जब भी करबला की तरफ देखता था और इतिहास पढ़ता था तो हुसैन के संघर्ष से मुझे हिस्सा मिल जाता था, अली असगर की मुस्कुराहट मुझे दिखाई देती थी, करबला से मुझे हिम्मत और हौसला मिल जाया करता था। इसलिए यहाँ से लेकर वहाँ तक मैं बता दूँ आपको, करबला में एक तरफ 22,000 का लश्कर था, दूसरी तरफ 72 थे, लेकिन वो जो 22,000 का लश्कर था वो क्वांटिटी थी और ये जो 72 थे ये क्वालिटी थी। इसलिए देश भर के मुसलमान अपने आप को माइनॉरिटी महसूस ना करें, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करें। और कसम खुदा की अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी पैदा हो गई तो सारे हिंदुस्तान में इनकलाब आ सकता है, पूरे देश में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए क्वालिटी पैदा करो। और फिर ये हुसैन ने बचाया इस्लाम, और फिर वो बचाते हुए इस्लाम आगे तक आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़रिए, इमाम मोहम्मद बाकिर के ज़रिए, इमाम जाफ़र सादिक के ज़रिए, इमाम मूसा काज़िम के ज़रिए, इमाम अली रज़ा के ज़रिए, इमाम तकी के ज़रिए, इमाम नकी के ज़रिए ये इस्लाम पहुंचा और सारी दुनिया में पहुंचा, बगदाद में भी पहुंचा। और हमें इस मुल्क पर गर्व है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और इस हिंदुस्तान को रसूल अल्लाह ने हुसैन का बेटा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज। और मैं आपको बता दूं गरीब नवाज से लोग प्यार क्यों करते हैं। एक हिंदू किसान साहब, एक हिंदू किसान उस ज़माने में, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का ज़माना, उस ज़माने में एक हिंदू किसान गरीब नवाज के यहाँ आया, कहा साहब मेरी ज़मीन पे उस ज़माने के जागीरदार ने कब्ज़ा कर लिया। कहा अच्छा, कहा हुजूर मैं चाहता हूँ मेरी ज़मीन छुड़वा दीजिए। कहा ठीक है, मैं ख़त लिख देता हूँ बादशाह को, वो तुम्हारी ज़मीन छुड़वा देगा। उसने कहा किसान ने कि हुजूर मुझे ये मंजूर नहीं है, आप मेरे साथ दिल्ली चलें। अब उस ज़माने में वंदे भारत तो थी नहीं, बुलेट ट्रेन भी नहीं थी, उस ज़माने में कोई पैसेंजर भी नहीं थी, कोई लोकल भी नहीं थी, बस भी नहीं थी, हाथी घोड़ा। तो उस ज़माने में जब उस हिंदू किसान ने कहा कि बाबा जी मेरे साथ आप दिल्ली चलिए, तो अजमेर से दिल्ली पैदल का सफ़र कितना मुश्किल रहा होगा साहब। और ज़रा सोचिए कि एज कितनी होगी, 80 से 90 साल के बीच की एज। अब उस गैर मुस्लिम हिंदू भाई ने आकर के अपनी भावनाएं गरीब नवाज के यहाँ पेश कर दी। सुल्तानुल हिंद ने जब सुना कि वो साथ में ले जाने की बात कर रहा है, तो गरीब नवाज ने ये नहीं कहा कि भैया सफ़र बहुत लंबा है, मेरी कमर में बड़ा दर्द होता है, पैर में बड़ी तकलीफ है, ये नहीं कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। अब जब वो चले और दिल्ली पहुँचने वाले थे तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए बाहर आ गए और आकर के उन्होंने कहा कि हुजूर आपने आने की तकलीफ़ क्यों की है, वहीं लेटर लिख दिया होता तो मैं ज़मीन आज़ाद करवा देता। सुनो, हम किसको मानने वाले लोग हैं? हम याद रखना ज़मीनों को जीतने वाले बादशाहों के गुलाम नहीं हैं, दिलों को फतह करने वाले मुईनुद्दीन के गुलाम हैं। दिलों को फतह करने वाले हज़रत ख्वाजा शमना मीरा के हम गुलाम हैं। गरीब नवाज ने उस बादशाह से फरमाया कि अगर मैं ख़त लिख देता ज़मीन तो आज़ाद हो जाती, लेकिन मेरे हिंदू भाई के दिल को सुकून कैसे मिल पाता, तसल्ली कैसे मिल पाता। बात सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं है। मखदूम बिहार, मखदूम जहाँ शेख शरफुद्दीन अहमद या मनेली रहमतुल्लाह अलैह, बिहार में एक बुजुर्ग हैं साहब, वो रोज़े से थे, फास्ट रखा हुआ था उन्होंने। एक बूढ़ी खातून आ गई, कहा उन्होंने हुजूर मेरा बच्चा गुम हो गया, या कोई भी मन्नत उन्होंने मांगी थी, मन्नत उनकी पूरी हो गई। अब वो लड्डू बना के लाई थी, रोज़े की हालत में हजरत बैठे हुए, उन्होंने कहा जी आप मुंह खोल दीजिए, मैं लड्डू खिलाने आई हूँ, मुंह खोल दीजिए। तो जब हजरत को उसने लड्डू खिलाया, मुंह खोल दिया, तो खुशी खुशी वापस चली गई। खानकाह में सारे लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था। अब वो सारे लोगों ने कहा कि हुजूर रोज़े की हालत में आपने लड्डू खा लिया। हजरत ने फरमाया कि भाई रोज़े की क़ज़ा कैसे करनी है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन किसी का दिल अगर टूट जाए उसकी क़ज़ा कैसे करनी है ये मैं नहीं जानता। इसलिए इस्लाम ये है, दीन ये है। हम इस देश को छोड़कर इसी वजह से नहीं गए, वी आर बाई चॉइस इंडियन, नॉट बाई चांस। हम इस देश को छोड़कर इसी वजह से नहीं गए क्योंकि ये ख्वाजा मुईनुद्दीन का देश है और ख्वाजा शमना मीना का देश है। हम इस देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। हमें इस देश पर इसलिए गर्व है क्योंकि ज़िंदगी के नाम पर दुनिया के किसी मुल्क में जीने वाले इतने लोग नहीं हैं जितने भारत में भारत के नाम पर मरने वाले लोग पाए जाते हैं। याद रखना, दुनिया की हर इस ताकत को इस देश के 130 करोड़ लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर इस देश की तरफ आंख उठा के भी देखा जाएगा, उसकी आंख
फोड़ दी जाएगी। इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जितना हिंदू भाई जिम्मेदार है उतना मुसलमान भी जिम्मेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम गर्व करते हैं इस देश पर। और पूरी कम्युनिटी से मैं कहना चाहता हूँ क्या आप अपने अंदर इनकलाब बर्पा करो, शिक्षा हासिल करो। जिस नबी की आमद का हम जश्न मना रहे हैं उन्होंने तालीम के ज़रिए सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। अपना रिश्ता किताबों से करो। एक रिश्ता और एक निकाह तो औरत से होता है और औरत का मर्द से होता है, लेकिन एक निकाह किताबों से भी करो। और तुम्हारा किताबों से अगर निकाह मजबूत हो गया तो याद रखना इस देश में बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। जब भी कोई कोऑपरेटिव होता है, जब भी कोई समाज में सहयोग करने वाला होता है, जब भी कोई समाज की सेवा करने वाला होता है, अपनी शिक्षा के जरिए, अपने पैसे के जरिए, अपनी जान के जरिए दुनिया उसको सम्मान देती है, दुनिया उसको इज्जत देती है। इसलिए तालीम हासिल करो, किताबों से अपना रिश्ता मजबूत करो। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, अभी 6-7 महीने पहले मैं मीरा जाया था, यही हजरत शमना मीरा की दरगाह की मस्जिद में तालीम के हवाले से तकरीर हुई थी। बहुत सारे भाइयों ने उसमें शिरकत की थी और मुझे खुशी हो रही है कि अभी 7-8 महीने मुकम्मल नहीं हुए, हमारे बुजुर्गों ने, सीनियर सिटीजन फोरम ने बाज़ाब्ता इसी मीरठ शहर में फ्री ऑफ कॉस्ट एक लाइब्रेरी का इंतजाम कर दिया है। जो बच्चे किताबें खरीद नहीं सकते, जो बच्चे किताबें खरीद नहीं सकते, जो स्कूल में अपनी फीस नहीं अदा कर सकते, किताबें उनके लिए एक मसला बन गई हैं। उन तमाम लोगों के लिए सीनियर सिटीजन फोरम ने लाइब्रेरी का इंतजाम कर दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी भी है, किताबें भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए तुम अपना रोना बंद करो, हाथ पे हाथ धरना बंद कर दो, सबब तलाश करो अपने हार जाने का। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अय्याशियां छोड़ दो, इधर उधर बैठना छोड़ दो, पबजी फ्री फायर को तलाक दे दो, ये नशे करना छोड़ दो, लड़कीबाजी छोड़ दो, हर तरह के फसादात को खत्म कर दो, खाली टाइम गुजारना बंद कर दो। तुम्हारे सामने बड़ा चैलेंज है, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और जब दरिया ज्यादा चढ़ा होता है तो हाथ पैर ज्यादा मारने होते हैं। इसलिए तुम्हारे शहर के सीनियर्स ने, तुम्हारे शहर के बड़ों ने अगर इतना खूबसूरत लाइब्रेरी का इंतजाम कर दिया है तो इन किताबों से फायदा उठाओ। 1400 साल पहले समाज में क्रांति शिक्षा के जरिए आई थी और अगर 2024 में इस भारत में इनकलाब अगर आ सकता है, क्रांति अगर आ सकती है तो वो किताब के जरिए आ सकती है, शिक्षा के जरिए आ सकती है, तालीम के जरिए आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलाम सलाम।